یہاں کا تو آپ کو پتا ہوگا، لیکن وہاں کا میں بتا رہا ہوں۔ مسجد کی بنیاد لگاتے ہیں تو کم از کم 20 سال لگتے ہیں مسجد کو مکمل ہونے میں۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ اور میں 30 سال سے کوئٹہ سے، کراچی سے چمن 30 سال سے ہو گئے سفر کر رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں پیٹی رکھی ہوئی ہے، مسجد یہاں اشارہ کرتے ہیں، بچے وہاں کھڑے کیے ہوئے ہیں، یہاں پیٹی پہ ہاتھ لگائیں گے یا یہ یوں کریں گے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے یہ سیم چل رہا ہے، وہاں پہ چل رہا ہے، یہاں کا پتہ نہیں۔ 30 سال ہو گیا ہے، مسجد نہیں تیار ہوئی ابھی تک۔ اب آؤ میں آپ کو امریکہ لے جاؤں۔ اگر تو اسلام صرف مسجد کا نام ہے تو پھر اچھا اسلام امریکہ میں ہے۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ امریکہ میں ٹھیکیدار آتا ہے، مسجد کی بنیاد لگاتا ہے، 6 مہینے گزرتے ہیں، چابی ہینڈ اوور کر دیتا ہے، مسجد تیار ہے۔ لو جناب مسجد تیار ہو گئی۔ مسجد بھی ایسی ہے، قدم رکھو تو جیسے صوفے پہ قدم رکھا ہے۔ سبحان اللہ بولو نا، مسجد ہے تو مسجد کہیں بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور گرمی ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے ایسی کی، اور اگر سردی ہے گرم گرم ہیٹر ہے۔ وہاں تو مقتدی کو یہ بھی تکلیف نہیں ہے کہ وہ ٹوٹی کھولے۔ ٹوٹی کہتے ہو کیا کہتے ہو؟ نل کو ٹوٹی کھولنے کی بھی تکلیف نہیں ہے مقتدی کو۔ اتنا آسان ہے وہاں مسجد میں نماز۔ یوں ہاتھ لے جاؤ تو پانی خود ہی آ جائے، سینسر لگا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ معافی کرے، ہمارے یہاں ٹوٹی ٹوٹ جائے نا، سب سے پہلے تو ہم اس کے اندر مسواک ڈالتے ہیں۔ یہ رونے کا مقام بتا رہا ہوں، یہ ہنسنے کا نہیں ہے واللہ۔ نہ امت مسلمہ کو ہنسنے کے قابل ہے۔ ہم تو اتنے نیچے گئے ہوئے ہیں مسلمان، اتنے گراف ہمارا نیچے گیا ہوا ہے کہ اب ہنسنا تو ہنسنا ہے، ہم مسکرا بھی نہیں سکتے۔ ہم اتنے ظالم ہیں کہ کولر میں ہم لوگ گلاس کو زنجیر ڈال کے لوگوں کے لیے رکھتے ہیں۔ کدھر ہے آپ لوگ؟ کہاں ہے وہ اسلام؟ کدھر سے لاؤں میں وہ اسلام کو کہ ملک شام سے وہ عورت چلی ہے، مکے تک پہنچی ہے، اس کے ایک ذرہ اشرفی بھی کسی نے نقصان نہیں کیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ یہ اسلام کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہم لوگوں نے کھیلا ہے۔ کیونکہ ہم کون ہیں؟ میں کسی سے پوچھتا ہوں who are you؟ I am Muslim۔ کیسے مسلمان ہیں آپ؟ ایکسیڈنٹلی، حادثاتی طور پر ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ہم نے آنکھ کھولی، جس والدہ کی گود میں ہم نے آنکھ کھولی وہ کلمہ پڑھتی تھی، جس باپ کے گود میں ہم نے دیکھا چہرہ دیکھا وہ کلمہ پڑھتا تھا، بھائی کلمہ پڑھتے تھے، بہنیں کلمہ پڑھتی تھی، محلے والے کلمہ پڑھتے تھے، اذان کی آواز آتی تھی۔ ہم لوگ سو مسلمان ہیں، سو ہم ایکسیڈنٹلی مسلمان ہیں۔ اسلام کی عظمت پوچھنی ہے تو لجپال حسین سے پوچھو، اسلام کی عظمت پوچھنی ہے تو امیر حمزہ سے پوچھو، اسلام کی عظمت پوچھنی ہے مولا علی سے پوچھو۔ ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ ہم نے اسلام آج ہم مسلمان اپنے آپ کو فخر سے کہتے ہیں تو مسجدیں امریکہ میں بہت اچھی ہیں۔ ہماری مسجدیں یا تو اس میں مسواک ڈالیں گے، اور پھر یا اگر مسواک سے کام نہ بنا پھر ٹیوب ڈال دیں گے، 1 مہینے تک پانی اس سے نکلتا رہے گا۔ مجال ہے کسی مقتدی کو کہ 150 روپے کی ٹوٹی لا کے مسجد میں لگا دے، نہیں بھائی اسانو چھاو نہیں، یہ ملوں ہے کمیٹی ہے اسانو چھاو ایسا چھوڑل کو ہے۔ یہ ہمارا گراف ہے، اور ہم کون ہیں؟ We are Muslims، ہم مسلمان ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج اسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ فہم کرتے ہو، اسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ کو مرضیاں لگتی ہیں، اپنے پڑوسی سید سے ملنا چھوڑ دیتے ہو۔ یاد رکھو
जाने कायनात ने रिश्ता काटा है अपने चाचा से। रीजन क्या है? इस्लाम पर उंगली उठाई है अबू लहब ने। फरमाइए मेरा चाचा नहीं है, मैंने रिश्ता तोड़ दिया। कौन रिश्ता तोड़ रहा है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कौन रिश्ता तोड़ रहा है? जिसका अपना फरमान है, फरमाते सिलमन कता का, जो तुझसे रिश्ता तोड़े तू उससे रिश्ता जोड़। और इस्लाम के लिए मुस्तफा रिश्ता तोड़ रहे हैं। अब आओ एक और हदीस पाक आपको ले जाऊं मदीना। मक्का देख लिया, देख लिया, चले मदीना। मदीने की सरजमीन है। एक ईरान से चला है, फारस से मुल्क के शाम गया है 70 साल का बूढ़ा शख्स। वहां से होता हुआ खजूरों वाले शहर मदीने में चेहरे वद्दुहा पे निगाह पड़ी है। कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है। लोग पूछते हैं तेरा नाम क्या है? जवाब देता है अना सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। मैं सलमान हूं, मेरे बाप का नाम इस्लाम है, मेरे दादा का नाम इस्लाम है, मेरे परदादा का नाम भी इस्लाम है। जाने कायनात ने जब सुना कि सलमान को मेरे इस्लाम से बड़ा प्यार है, कहा लोगों एक मैंने ऐलान किया था वादिये सफा कोए सफा की चोटी पे, एक ऐलान किया था मक्के की सरजमीन पे, और एक ऐलान करता हूं यहां। वहां मैंने रिश्ता तोड़ा था किससे? जो मेरा खून है, मैं उनका खून हूं। वो मेरे वालिद की जगह पर चाचा था। ज़बान एक, इलाका एक, वतन एक, कबीला एक, ट्राइबल एक, सब एक। लेकिन मैंने रिश्ता क्यों तोड़ा? इस्लाम पर उंगली उठाई। और आज ये शख्स है, मेरी जबान अरबी है, ये फारसी बोलता है। मैं अरब का हूं, ये अजम का है। मैं मक्के का हूं, ये ईरान का है। न जबान का रिश्ता, न इलाके का रिश्ता, न जोग्राफी रिश्ता, न खून का रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं। लेकिन इस्लाम से प्यार करता है, इसीलिए मैं मुस्तफा ऐलान करता हूं सलमान मिन्ना अहलल बैत। आज के बाद सलमान मेरे अहले बैत का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। किधर हैं आप? किधर हैं? किन चक्करों में पड़ गए आप? किन लोगों के पीछे पड़े हैं? इस्लाम को यतीम बनाकर, गरीबुल वतन बनाकर। आज बड़े समझदार हैं हमारे वडेरे। अल्लाह जो पनाह बाबा बाकी छाता चल। अरे भाई मुल्लन जो छा भाई ये है मस्जिद नमाज पढ़न, यही बात करते हैं ना, और यही करते नहीं करते हैं। मैंने तो दूर सुनी है, आपने तो करीब से सुनी होगी। अब आई मुल्लन के दीदी से बाबा ये मस्जिद में भी है बाबा, ये कल को आ नमाज आ। अब आप पहले कम कहो, अब आज 6 बजे हुकूमत सा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं तस्दीक कर रहा हूं। अब मैं बताने लगा हूं कि ये बात शुरू किसने की थी, बताऊं? वो कौन सा वडेरा था? वडेरा हम लोग बोलते हैं सरदार को, यहाँ पता नहीं वडेरा। वडेरा माना वडा मानू, यही ना? हाँ बड़ा, वडेरा बड़ा। मैं बताऊं ये बात बहुत बड़े वडेरे ने की थी। वो पहला वडेरा कौन था बताऊं? तारीख से बताऊंगा। सुभान अल्लाह। ऐसे हवा में बातें नहीं करते हम लोग। वो वडेरा हमारा भी एक वडेरा था, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ हमारा भी एक वडेरा था। सुभान अल्लाह। एक उस बड़े वडेरा ने हमारे बड़े वडेरे को कहा कि आप मस्जिद में बैठे, आप अल्लाह अल्लाह करें, आप नमाज पढ़ाएं, हाजियों की निगहबानी करें, मैं आपको मजहबी उमूर का मिनिस्टर बनाता हूं, आप मुझे छोड़े, मैं जिस तरह चाहूं हुकूमत करूं। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक। न याबला है मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं जहर हलाहिल को कभी कह न सका कंद। बड़े वडेरे ने कहा था हमारे बड़े वडेरे से कि आप मस्जिद में बैठे, आप अल्लाह अल्लाह करें,
आप हाजियों की निगहबानी करें, मैं जिस तरह चाहूं हुकूमत करूं। हाँ, मैं आपको मजहबी उमूर का मिनिस्टर बनाता हूं, साल में फंड भी मिलेगा, बैठे रहे। बड़ा हमारे वडेरे ने क्या जवाब दिया बताऊं? हमारे बड़े वडेरे ने जवाब दिया, जालिम, यजीद पलीत। सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो। यजीद पलीत, तू मुझे कह रहा है कि मस्जिद में बैठूं? सुन, ये लजपाल हुसैन ने यजीद को जवाब दिया था। सुभान ये अल्लाह। सबसे पहला शख्स जिसने कहा था कि मस्जिद अलग है, सियासत अलग है, उसका नाम था यजीद पलीत, कातिले अहले बैत। उसने लजपाल हुसैन को कहा कि मैं तुम्हें मजहबी उमूर का मिनिस्टर बनाता हूँ, अलविदाया व निहाया उठा के देखे किताब, आपके सामने हो, आपको मिनिस्टर बनाता हूँ, जाके आप मस्जिद संभाले, मदरसा संभाले। भाई क्या हो गया, आप ईमान से बताओ, लजपाल हुसैन मौलवी थे नहीं थे? बोले बोले बोले। वो ऐसे आलिम थे कि जिनका वालिद इल्म का दरवाजा है। अच्छा, दूसरी बात, लजपाल हुसैन पीर थे या नहीं थे? बिल्कुल, जोर से बोलो। बिल्कुल थे। देखो, मेरे जो मुर्शिद है, मेरे मुर्शिद ख्वाजा सरदार अहमद, ठीक है, उन्होंने अपने मुर्शिद से तरबियत ली, मैंने अपने मुर्शिद से ऐसे ही है, किसी के मुर्शिद ने अपने मुर्शिद से तरबियत ली है। साईं हुसैन शाह बादशाह ने पीर मिठा साईं से, सुभान अल्लाह। हाँ, तो हर एक ने सिलसिला चलते चलते अपने मुर्शिद से। लजपाल हुसैन ने किससे तरबियत ली? अल्लाह, रहमतुल्लिल आलमीन के गोद में तरबियत ली है। सुभान अल्लाह। उन जैसा तो पीर कोई हो ही नहीं सकता। दो बातें हो गई, मौलाना भी है, आलिम भी है, तरबियत मौला अली से हुई है, पीर भी है, तरबियत मुस्तफा से हुई है। अब ये बताओ, सैयद है या नहीं है? बेशक सैयदों के सरदार है सब। अब देखो, सैयद आ रहा है। मुझे रात को फोन आया कि एक शाह साहब जो है वो उधर कराची साइड पे, कहते शाह साहब मेड़ कहते हैं, पता नहीं हम लोग आप लोग क्या कहते हैं, मेड़ कहते हैं। हाँ, 8-10 बंदे लेके ना सैयद बादशाह जा रहा है, उसको कह रहे हैं आप फिलाने के हक में बैठ जाए। मैंने कहा, इस सैयद को शर्म नहीं आती है? नाना के दीन के लिए जिसने झंडा उठाया है, और ये लोगों के दुनियादारों की तरफ से आके कहता है दीन का झंडा नीचे करो। ईमान से बताओ, वो सैयद होगा? आओ मैं आपको बताऊं सैयद कौन है। मिशकात शरीफ की हदीस है, फरमाया इन औलियाई इल्लल मुत्तकून, मुस्तफा में मेरी औलाद वो है जो दीन का ताबेदार है, जो दीन का गद्दार है। मुस्तफा ने मोहर लगा दिया, वो मेरी औलाद नहीं है। अब लजपाल हुसैन ने जो जवाब दिया वो सुनो, बताओ किस दुनिया में है, किस दुनिया में है जिसने जिधर लगा दिया हम लोग भी उधर ही चले गए, आदी बन गए ना, आदी बन गए हम। हकीकत है, निजाम 74 साल से ऐसे चल रहा है, 74 साल से हम लोग तो आदी बन गए। अब कोई आ जाए, कोई नया सिस्टम, नबी अलैहिस्सलाम को भी 13 साल लगे नहीं लगे, हालांकि जरूरत नहीं थी, ये हमारे लिए तालीम थी। 13 साल लगे, ये हमारे लिए तालीम थी। हम लोग आदी जो हो चुके हैं, इन वडेरों, इन मीरों, इन सरदारों, इन पार्टियों, इन पता नहीं के डिक्टेटरों, पता नहीं किस किस के हम लोग आदी हो चुके। अब ये निकलने में भी वक्त लगेगा। सुनाऊं एक वाकया, एक बात।